Good morning, students. How are you all? Let us start with the first chapter again, that is nationalism in Europe. Beta, we have already completed till second part, that is the making of nationalism in Europe, and today we are going to start with the third portion, that is the age of revolution 1830 to 1848. Before starting with this topic, I want to give you a brief review of the chapter that we have covered till now. Let us start a small revision of the chapter. What we have discussed in the chapter, we have discussed about the painting of one artist, Frederick Saugues. Then what this writer gave the idea, this writer gave the idea of nation state. That what is nation state? Nation state is that beta where the feeling of belongingness is there among the people of the nation. Collective feeling, sense of collective identity is there. When people feel themselves as a part of a nation, when there is a voice of people in the nation. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोनार्क डोमिनेट कर रहा है, मोनार्क जैसा कह रहा है वैसा हो रहा है, लोगों का भी पार्टिसिपेशन हो, जैसे कि आज डेमोक्रेसी में है, जब लोग अपने आप को कंट्री से रिलेट कर सके, दैट इज कॉल्ड एज नेशन स्टेट फीलिंग. Then we have discussed about the French Revolution. French Revolution started in 1789. ठीक है, ये पूरा अपन ने डिस्कस किया. इसमें जैकोबिन्स क्लब्स बने. उससे पहले सबसे पहले क्या बना फ्रेंच में? फ्रेंच में पहले मोनार्क था प्लस 3 पार्ट्स थे सोसाइटी के, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट. आफ्टर दैट व्हाट वी हैव सीन कि इन फ्रेंच नाउ देयर बिकॉज ऑफ एम्प्टी ट्रेजरी मोनार्क इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस न्यू टैक्सेस. Because of that there is a revolution in France, and finally monarchy was abolished, but it was not abolished completely. Constitutional monarchy came under national assembly, means राजा भी रहेगा और जनरल पब्लिक के पास भी पावर रहेगी. But under that what we have seen, power is given to only rich section of the third state. थर्ड स्टेट में एक न्यू जो क्लास क्रिएट हुई, मिडिल क्लास ऑफ एजुकेटेड पीपल, मर्चेंट्स. तो ये जो रिच सेक्शन थे थर्ड स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आने के बाद उनको पावर मिली, पुअर पीपल्स को नहीं मिली. देन पुअर पीपल्स अगेन रिवोल्टेड. नाउ द पावर गोज टू पुअर पीपल्स, दैट इज पुअर पीपल्स जैकोबिन्स club. Jacobins club head was Maximilian Robespierre. But when power went to Maximilian Robespierre, he also misused the power. Then again there was revolution, and again power went to the people of third state, richer section, that is middle class people. And again there was a new government in the France. But that also failed because this time they introduced 5 directors. 5 directors used to clash with each other, and this situation's benefit went to Napoleon Bonaparte. And finally in France, Napoleon Bonaparte came and he established dictatorship. ठीक है. When he came to Europe, he introduced modernization. ये आपने पढ़ा था नेपोलियनिक सिविल कोड, बेटा अपन ने डिस्कस किया, जिसमें अपन ने क्या डिस्कस किया कि he was the modernizer of France और complete Europe. He introduced some good system. जो पहले फ्रांस में डेसिमल सिस्टम अलग थे, यूनिट ऑफ मेजर्स, वेट और जो डिफरेंट थे उसको चेंज कर दिया. जो 32 करेंसीज थी उसको रिड्यूस करके 2 कर दिया. जो मेजरमेंट का सिस्टम अपन ने डिस्कस किया. तो ये सारा जो इंट्रोडक्शन किया नेपोलियन ने, तो ही वॉज मॉडर्नाइजर. एट द सेम टाइम क्या हुआ, इसकी जो अच्छाई थी मॉडर्नाइजिंग, वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गई. क्यों कन्वर्ट हो गई? बिकॉज ही वॉज डूइंग ऑल दीज थिंग्स फॉर हिज ओन बेनिफिट, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर सके मर्चेंट से, सब लोगों से. ठीक है, ये अपन ने डिस्कस किया. फिर अपन ने सेकेंड पार्ट में डिस्कस किया कि इन अर्लियर टाइम फ्रांस वॉज डिवाइडेड इंटू स्मॉल पैचेस, और कह सकते हैं कैंटोन्स, यूनिट्स. मतलब एक नेशन स्टेट की फीलिंग नहीं थी फ्रांस में या यूरोप में लोगों में. क्यों? क्योंकि एक स्टेट क्रिएट नहीं था, एक नेशन क्रिएट नहीं था, कंप्लीट एक यूनिट नहीं था. तो स्मॉल पैचेस में डिवाइडेड था. तो सब जो मोनार्क, अलग अलग मोनार्क के अंडर में थे, अलग अलग पार्ट्स. तो अलग अलग मोनार्क होने की वजह से लोगों की कल्चर अलग था, लैंग्वेज अलग था, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं थी, तो कुछ भी कॉमन नहीं था. देन द क्वेश्चन रेजेस, तो फिर फ्रांस में जो है कॉमननेस की फीलिंग कैसे डेवलप हुई, लोगों ने जो है बिलोंगिंगनेस कैसे फील करना शुरू की.
देन फिर अगेन अपन ने डिस्कस किया था द एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। देखो फ्रांस में तो अपन ने डिस्कस किया कि 3 स्टेट्स के पीपल थे, बट अगर ओवरऑल यूरोप की बात किया जाए तो बेटा ओवरऑल यूरोप में जो है हमने पढ़ा 10% एरिस्टोक्रेसी थे और 90% पुअर पीपल थे। एरिस्टोक्रेसी क्या पढ़ा था अपन ने, जो रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटीज थे, नोबल्स थे, क्लर्गी थे या जो रिच पीपल्स थे, ठीक है, दे आर कनेक्टेड विद द टाइज ऑफ मैरिजेस, मतलब अलग अलग जर्मनी यूरोप में अलग अलग यूरोप की एरिया में रहने के बाद भी वो आपस में कनेक्टेड थे, एक जैसा कल्चर शेयर करते थे, वो सब फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। देन वी हैव डिस्कस धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, न्यू मिडिल क्लास डेवलप हुई, एजुकेटेड पीपल डेवलप हुए, उन्होंने अपने राइट्स को अंडरस्टैंड करना शुरू किया एंड दे स्टार्टेड रेजिंग देयर वॉइस। Then we have discussed on page number 9 what did liberal nationalism stand for. It stands not for liberal nationalism for the people of Europe is not a universal adult franchise. Means at that time they don't want right for women, they want right for only men. ठीक है, फिर इकोनॉमिक स्फीयर पे भी अपन ने डिस्कस किया था कि लिबरल नेशनलिज्म में क्या है, तो इकोनॉमिक स्फीयर पे हमने डिस्कस किया था कि करेंसी एक जैसी हो जाए, वेट सिस्टम प्रॉपर हो, मेजर जो नेपोलियन ने चेंजेस किए थे वो लिबरल पीपल्स चाहते थे, क्योंकि धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मर्चेंट्स ग्रो कर रहे थे, तो ये जो बैरियर्स थे, ट्रेड बैरियर्स, वो उनको रिमूव करने चाहते थे। फर्दर पेज नंबर 10 पे अपन ने डिस्कस किया कि इन 1815 व्हेन नेपोलियन वाज डिफीटेड बाय प्रूशिया, ऑस्ट्रिया एंड रशिया, जो रिचेस्ट पावर थी, नेपोलियन को डिफीट कर दिया। डिफीट करने के बाद वापस क्या आ गया, न्यू कंजर्वेटिज्म। कैसे आ गया, थ्रू ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी ऑफ वियना के होस्ट कौन थे, ड्यूक मेटरनिच, ठीक है। और अब जो न्यू कंजर्वेटिज्म आया, न्यू कंजर्वेटिज्म मींस पुराने जो मोनार्क थे वो वापस आ गए, जैसे फ्रांस में बोर्बन फैमिली वापस आ गई, तो इस बार वो ज्यादा ऑटोक्रेटिक बन गया है। पहले राजा इतने क्रूअल नहीं थे, टैक्स तो वो चार्ज करते थे, बट दे वर नॉट क्रूअल टुवर्ड्स देयर people, but this time they were cruel towards their people. They imposed censorship on their people. Censorship when general public is not having any right to express or speech against the king, against the monarch. means अगर कुछ भी monarch को फील होता था कि अगेंस्ट है उसके, तो वो उनको जो है उसको स्टॉप कर सकते थे। तो ये अपन ने डिस्कस किया। फर्दर अपन ने डिस्कस किया कि जब न्यू कंजर्वेटिज्म आ गया तो जो ये यूनियंस थे, जैकोबिन्स क्लब थे, इन सब पे बैन लग गया, बट जो फीलिंग थी लोगों के अंदर वो तो डेवलप हो चुकी थी। तो अब उन्होंने क्या बनाना शुरू की, सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म करना शुरू की, जिसमें अपन ने एग्जांपल पढ़ा गिउसेप्पे मैज़िनी का, जो कि एक इटालियन थे, जिन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज के थ्रू जो है अपना जो रिवॉल्यूशन है वो कंटिन्यू रखा। अब आज हम स्टार्ट, ये दिस वाज अवर रिवीजन पोर्शन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 एंड 1848। तो दिस रिवॉल्यूशन इज डन बाय लिबरल नेशनलिस्ट। हु? लिबरल नेशनलिस्ट। अब लिबरल नेशनलिस्ट कौन थे? लिबरल नेशनलिस्ट जो थे बेटा, दे वर एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल। जो अपन ने कहा ना न्यू क्लास डेवलप हुई थी, तो जो एजुकेटेड लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, टीचर्स थे, और उसके अलावा जो रिचर सेक्शन सोसाइटी के थे, मर्चेंट्स थे, ठीक है, लैंडलॉर्ड्स थे, तो इन लोगों ने शुरू किया 1830 में मूवमेंट, रिवॉल्यूशन। They are called as liberal nationalists, and that first revolution was started in France in July 1830. Again in France, earlier also in Europe, first time against monarch, the first voice was raised in France in 1789. If you remember, through the demolition of Bastille. And again, when new conservatism came, again जब monarch rule करने आए after Napoleon, तो again first time the revolution again started in July 1830. Because it was started in France, तो जो ड्यूक मेटरनिच थे, कौन थे? जो ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी उसमें जो चांसलर थे, स्पीकर थे ड्यूक मेटरनिच, उनकी बात कर रही हूँ मैं बेटा। तो ड्यूक मेटरनिच ने फ्रांस के बारे में क्या कहा? ड्यूक मेटरनिच ने गिउसेप्पे मैज़िनी के बारे में क्या कहा था? रिवॉल्यूशनरी के बारे में कि कहा था कि वो सोशल ऑर्डर के एनिमी हैं। उसी तरह से फ्रांस के बारे में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि व्हेन फ्रांस sneezes the rest of Europe gets cold। मतलब जब भी फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है। तो एक तरह से ताना है कि कुछ भी फ्रांस में होता है, थोड़ी भी चिंगारी उठती है तो उसका पूरा प्रभाव कहाँ जाता है? पूरे यूरोप पे उसका इफेक्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम
फ्रांस में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुए अगेंस्ट न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। फ्रांस में कौन रूल कर रहा था बेटा? अगेन बॉर्बन फैमिली। पर पहले रूल कर रहे थे बॉर्बन फैमिली के लुइस 16, दिस टाइम बॉर्बन फैमिली के लुइस फिलिप्स। तो जब रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ तो अगेन लुइस फिलिप्स को हरा दिया गया, उनसे उनकी पावर छीन ली गई और एक बार फिर फ्रांस में एस्टेब्लिश हुई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मीन्स राजा तो रहेगा बट जनरल पब्लिक का कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, उनको राइट्स मिलेंगे, उनके पास पावर चली जाएगी। ये हुआ फ्रांस में, ठीक है। दिस वाज रिवॉल्यूशन ऑफ जुलाई 1830। फिर फ्रांस से हमने कहा कि फ्रांस में कुछ भी होता था उसका प्रभाव पूरे यूरोप में जाता था। तो फ्रांस की यूरोप की काफी कंट्रीज पे इसका इफेक्ट आया, इटालियन कंट्रीज पे, जर्मन कंट्रीज पे, आयरलैंड, पोलैंड और ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर बेटा जो आज टर्की है ना, उस समय उनको ऑटोमन एम्पायर कहा जाता था, ठीक है। तो फ्रांस के बाद इसका इफेक्ट आया बेल्जियम पे, ठीक है। बेल्जियम पे रूल कर रहा था यूनाइटेड स्टेट, तो बेल्जियम पे इफेक्ट आया और बेल्जियम ने भी जो है अपने फ्रीडम के लिए वॉइस रेज करना शुरू किया। बेल्जियम से फिर फर्दर इफेक्ट आया इन रिवॉल्यूशंस का ग्रीस पर, और ग्रीस का पूरा आपका इंडिपेंडेंस का ग्रीस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, ये नोटबुक में करना कि हाउ ग्रीस गॉट इट इंडिपेंडेंस, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें आप अपन ये देखेंगे कि जो ग्रीस था ना बेटा, जैसे आज जैसे हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो था ये यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रेडल था, चिन्ह था एक तरह से। जैसे धार्मिक अपन कह सकते हैं भूमि थी, जैसे हमारी सिविलाइजेशन, जैसे अयोध्या से हमारे सेंटिमेंट्स जुड़े हुए क्योंकि भगवान राम से हमारे सेंटिमेंट्स जुड़े हैं। उसी तरह से हरिद्वार है जो हमारा तीर्थ स्थल है, और इस तरीके से हमारे कुछ एंशिएंट सिविलाइजेशन की प्लेसेस है ना बेटा। उसी तरह से यूरोप के सिविलाइजेशन की पहचान थी ग्रीस, ठीक है। अब ग्रीस पे 15th सेंचुरी से ना ऑटोमन एम्पायर ने कब्जा कर लिया था। ग्रीस पर 15th सेंचुरी से ऑटोमन एम्पायर, टर्की जो है आज का, उन्होंने अपने अंडर में ग्रीस को कर लिया। तो जब ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स लोगों के अंदर डेवलप हुए, उन्होंने वॉइस रेज करना शुरू की, तो उनका ध्यान पूरे यूरोप का कहाँ गया? ग्रीस की तरफ। तो ग्रीस पे कौन रूल कर रहा है? ऑटोमन एम्पायर। तो अब उन्होंने डिसाइड किया कि हमको हमारा ग्रीस वापस लेना है, ठीक है। एंड दे स्टार्टेड होल यूरोप से जो है एक रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ ग्रीस को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। और इस इंडिपेंडेंस, जैसे फ्रांस में अपन ने पढ़ा था फिलोसोफर्स का रोल, कि फिलोसोफर्स ने जो है वॉइस रेज की। ग्रीस में पोएट्स, आर्टिस्ट ने पेंटिंग्स के थ्रू, पोएट्स ने अपनी पोएट्री के थ्रू जो है लोगों में फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स जो है डेवलप की, ताकि जो है वो ग्रीस इंडिपेंडेंस के लिए वॉइस रेज कर सके, ठीक है। और इसमें स्पेशली मेंशन किया गया है एक पोएट को, लॉर्ड बैरन, ठीक है, जिन्होंने जो है फंड्स कलेक्ट किए ताकि जो है वो जो ग्रीक वॉर में यूज हो सके। पर अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सम फीवर, लॉर्ड बैरन डाइड because of fever in 1824. But this revolution for Greek independence continues till 1832 and finally through one treaty, एक agreement के through, एक treaty of Constantinople, 1 marks के लिए आता है कि treaty of Constantinople क्या है, नोटबुक में करना। तो through this treaty Greek got its independence from Ottoman Empire in 1832. Now next topic पे मूव करते हैं, that is romanticism. So the second heading is the romantic images and national feeling, ठीक है। romantic images also called as romanticism. romanticism क्या बेटा? कि creating internal feeling और create sense of belonging और create love towards nation, मीन्स किसी भी चीज के लिए, नेशन के लिए, किसी भी चीज के लिए इंटरनल फीलिंग डेवलप करके लोगों को उकसाना, न कि सिर्फ लॉजिक और साइंस के बेसिस पे। नॉर्मली अपन क्या है, किसी भी चीज को जस्टिफाई करने चाहते हैं, डिमांड करने चाहते हैं, तो वी यूज साइंस और लॉजिक्स कि ये ऐसा होना चाहिए क्योंकि ये ऐसा है, लॉजिक्स देने की, तर्क देने की कोशिश करते हैं। बट समटाइम्स जो है इंटरनल फीलिंग्स को डेवलप करके, देश प्रेम भक्ति को, देश प्रेम को डेवलप करके भी लोगों में जो है एक फीलिंग डेवलप की जा सकती है। उनको रिवॉल्यूशंस के लिए सिर्फ साइंस और लॉजिक्स के बेसिस पे नहीं, फीलिंग्स डेवलप कर सके। कैसे फीलिंग डेवलप करके?
थ्रू कल्चर, आर्ट, पोएट्री, म्यूजिक, स्टोरीज, फॉल्कलोर्स कह सकते हैं, फोक टेल्स कह सकते हैं, कि पुरानी जो कहानियां बता के लोगों को कि है ऐसे था, मतलब तो लोगों में फीलिंग डेवलप की जा सकती है। सिर्फ साइंस और लॉजिक को हमको फॉलो नहीं करना चाहिए। और ऐसे कुछ आर्टिस्ट हम देखेंगे, पोइट्स भी थे। एग्जाम्पल दे रखा है जर्मन फिलोसोफर जॉन गॉटफ्राइड को, जिन्होंने इस आइडिया का सपोर्ट किया कि सिर्फ साइंस और जो है आर्ट के बेसिस पे ही लोगों में जो है फीलिंग्स नहीं डेवलप करनी चाहिए। रोमांटिसिज्म में इंटरनल फीलिंग को जागरूक करके भी लोगों को जो है सही डायरेक्शन जो है दिखाया जा सकता है। तो रोमांटिज्म मीन्स डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल फीलिंग थ्रू कल्चर, आर्ट, पोएट्री, म्यूजिक, स्टोरीज। ठीक है, अब यहाँ पे आपका एग्जांपल दे रखा है पोलैंड में, कि किस तरह से पोलैंड में इन चीजों को यूज करके लोगों में फीलिंग डेवलप की गई, उनको रिवॉल्यूशन के लिए, स्ट्रगल के लिए जो है इंस्पायर किया गया। तो फर्स्ट पोलैंड में क्या यूज हुआ? यूज ऑफ फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस, पोएट्री बाय कैरोल क्रुपिंस्की, यूज्ड ऑपेरा एंड म्यूजिक, फोक डांसेस, ये सारी चीजें यूज करके कैरोल क्रुपिंस्की ने जो है लोगों में थ्रू फीलिंग डेवलप करने की कोशिश की पोलैंड में। क्यों पोलैंड में जरूरत पड़ी? बिकॉज पोलैंड को जो है 18th सेंचुरी में रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया ने आपस में डिवाइड कर दिया था, मतलब कैप्चर करके पोलैंड को पार्टीशन कर दिया था और अपने एरिया में मिक्स कर दिया था। किसने? मेजर पावर्स थी उस समय, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया। So Poland was partitioned or divided in 18th century, and now it was divided into 3 parts and it becomes a part of Russia, Prussia and Austria. But जो रिवॉल्यूशनरीज थे, जो जनरल पब्लिक थी, जिनकी फीलिंग जुड़ी हुई थी अपने देश के साथ, पोलैंड के साथ, तो वो उस चीज को मरने नहीं देना चाहते थे, खत्म नहीं करने देना चाहते थे, उस फीलिंग को जो है जिंदा रखना चाहते थे। दैट्स व्हाई दे यूज, और वो कैसे यूज करना चाहते थे? थ्रू फोक सॉन्ग, फोक डांसेस, अपने लोगों को याद दिलाना चाहते थे कि ये हमारा पोलैंड है। तो पोलैंड के फोक डांसेस थे पोलोनाइज एंड मुजुर्का। ये 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि व्हाट वाज पोलोनाइज एंड मुजुर्का। तो पोलोनाइज एंड मुजुर्का वाज द फोक डांसेस of Poland, and it was used for creating sense of identity, belonging of, or inspiring people in Poland during the 18th century when great powers divided or partitioned Poland into different parts. तो ये चीजें किसने करी? कैरोल क्रुपिंस्की जो है, उन्होंने क्या किया? ओपेरा बेटा सिंगिंग थिएटर्स होते हैं, के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू, और ये फोक डांसेस किसने यूज की? इन्होंने ही कोशिश की। He was one of the revolutionary of Poland. He tried to inspire people or tried to raise people for revolution through these things. ठीक है, not through science or logic or not through weapons. ठीक है, फर्दर पोलैंड में क्या यूज किया गया? अब मैंने बताया पोलैंड 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, तो एक पार्ट कहाँ चला गया? रशिया में। अब रशिया ने पोलैंड के साथ क्या किया कि पोलैंड के जो स्कूल्स थे जहाँ पे पॉलिश लैंग्वेज यूज होती थी, तो रशिया ने सबसे पहले पोलैंड के उस पार्ट में से, स्कूल्स में से क्या किया? पॉलिश लैंग्वेज को पूरी तरह से खत्म कर दिया, थ्रो कर दिया, और अपनी रशियन लैंग्वेज जो है स्टूडेंट्स के ऊपर थोपी। तो फिर फर्दर जो रिवॉल्यूशनरीज थे पोलैंड के, उन्होंने क्या किया? स्पेशली जो स्टेप उठाया लैंग्वेज का, वो उठाया क्लर्गी पीपल ने। क्लर्गी पीपल ने अपनी खुद की पॉलिश लैंग्वेज को का जो है संदेश लोगों को दिया, इंस्पायर किया टू यूज पॉलिश लैंग्वेज, नॉट टू यूज रशियन लैंग्वेज दैट वाज इम्पोज्ड बाय रशियन कम्युनिटीज unnecessarily, forcefully on general public of Poland. So clergy people, highest authority people, said to their people that not to use Russian language, use only Polish language. तो इस तरीके से फोक डांसेस के और पॉलिश लैंग्वेज के एग्जाम्पल दे रखे कि किस तरह से पोलैंड के लोगों को इंस्पायर करके रशियन डोमिनेंस के खिलाफ स्ट्रगल करने के लिए इंस्पायर किया गया। तो थ्रू लैंग्वेजेस, थ्रू डांसेस, एनीथिंग, पीपल्स आर ऑल्सो इंस्पायर्ड फॉर रेजिंग देयर वॉइस, फॉर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द मोनार्क। तो पुराने टाइम में जो है यूरोप में सिर्फ जो है लोगों को जो है लॉजिक्स के थ्रू नहीं इंस्पायर किया गया कि भैया वी आर ह्यूमन बीइंग्स ऑफ अ नेशन, सो वी शुड हैव राइट, बट इन चीजों के थ्रू भी इंस्पायर किया गया। तो दिस इज कॉल्ड एज रोमांटिसिज्म, व्हेन इंटरनल फीलिंग इज डेवलप्ड थ्रू these symbols, especially for illiterate peoples of the society who can't read and write about the logics and sciences. तो उनके लिए ये स्पेशली यूज किया गया। Now further we are moving to next topic.
Okay, beta, again we are starting with the third topic, hunger, hardship and popular revolt. ठीक है? In this topic we are going to see that this period of अपन कह सकते हैं first half of the 19th century or period of 1830 is very hard or extreme hardship period for the people of overall Europe. How? There is an increase in population in Europe. ठीक है? Ultimately, population is increasing, but employment is not increased. There is unemployment in Europe, and when there is unemployment in Europe, the people of rural people of European areas migrated to the towns, to the urban areas in search of job. And when they migrated towards the urban areas in search of job, they find stiff competition from इंग्लैंड से बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन उनको फेस करना पड़ा. व्हाई? बिकॉज एट दैट टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज गोइंग ऑन एंड इंग्लैंड वाज फ्लोरिशिंग वेरी वेल. और इंग्लैंड के पीपल जो है मशीनरी जो गुड्स थे, मशीन मेड गुड्स जो है वो बहुत ही चीप रेट में सोल्ड आउट कर रहे थे थ्रू आउट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. तो देयर वाज अ एक्सट्रीम हार्डशिप period for the people of Europe because of increase in population, unemployment or stiff competition from the England. And especially here the case of example of France is given. Especially France की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी. क्यों? Population increase हुई, food shortage हुई, supply increase नहीं हुई. ऊपर से क्या हुआ? There was a crop failure. तो already they were under the feudal dukes. ज्यूस मतलब फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे उनके अंडर में थे. फर्दर क्रॉप फेलियर्स के बाद अगेन दे आर टेकिंग मोर एंड मोर मनी फ्रॉम द मनी लेंडर्स. दे आर कैप्चरिंग इन द डेब्ट ट्रैप में फंस रहे हैं. एंड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, फूड शॉर्टेज देयर, प्राइस राइज. फूड शॉर्टेज इज ऑब्वियसली व्हाट विल बी देयर वाज अ प्राइस राइज इन फ्रांस. एंड फर्दर अगेन देयर वाज अ रिवॉल्ट इन France in 1848. Earlier what we have seen in 9th class that subsistence crisis was there. Subsistence crisis, an extreme situation where basic means of livelihood are not possible. Same situation again came in France. Again the people of France revolted in 1848, and this time constitutional monarchy again changed to republican form of government. Louis Philippe who was ruling under constitutional monarchy. अपन ने पढ़ा ना 1830 में. अभी अपन ने क्या पढ़ा कि constitutional monarchy आ गई थी और constitutional monarchy भी हट गई. अब टोटल जो है फ्रांस में जो है इतनी सिचुएशन खराब होने के बाद लोगों ने किंग को जो है ब्लेम किया. ऑब्वियसली कुछ भी गलत होता है तो हम किसको ब्लेम करते हैं? गवर्नमेंट को ब्लेम करते ना. तो उस समय मोनार्क रूल कर रहे थे कि मोनार्क उनकी सिचुएशन को सुधारने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है. तो दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द किंग और फाइनल किंग को वहां से भागना पड़ा और अपनी पावर छोड़नी पड़ी. जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो पहले खत्म हुई थी बॉर्बन फैमिली की, एक बार फिर से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कंजर्वेटिज्म एंड हो जाता है पूरी तरह से. फ्रांस में रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाती है 1848 में. ये दे रखा है एग्जाम्पल फ्रांस का. वन मोर एग्जाम्पल इस पॉइंट में कवर किया गया है सिलेसिया का. जहां फ्रांस में एक तरफ ये सिचुएशन हो रही थी, वहां सिलेसिया में क्या हो रहा था? सिलेसिया में वीवर्स होते थे बेटा. 18,000 इनहैबिटेंट जो फैमिलीज है दे यूज्ड टू वीव. फ्रांस में पीजेंट्स थे, सिलेसिया में वीवर्स थे, कपड़े का काम करने वाले थे. ठीक है? यहाँ पे उनके ऊपर एरिस्टोक्रेसी थे, उनके ऊपर सिलेसिया में कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे. कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते थे? वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे वीवर्स को, पुअर वीवर्स को, और पुअर वीवर्स उनकी वीविंग करके फिनिश प्रोडक्ट्स तैयार करके वापस कॉन्ट्रैक्टर को देते थे और उसके बदले में कॉन्ट्रैक्टर्स उनको वेजेस प्रोवाइड करते थे और वो वेजेस बहुत ज़्यादा लो होते थे. ठीक है? डे बाय डे बहुत लो हो रहे थे और उनकी सिचुएशन जैसे फ्रांस में इस तरीके से हार्डशिप फेस की, सिलेसिया में जो है लो वेजेस के कारण वो एक्सट्रीम हार्डशिप फेस कर रहे थे. प्राइस राइज होते जा रहे थे एंड फाइनली वहां पे भी सिलेसिया के वीवर्स ने दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर. दे अटैक्ड ऑन द मेंशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर के घरों पे अटैक किया. उनकी जो विंडो एक्सपेंसिव पेन्स थी उनको ब्रोक कर दिया, फर्नीचर को ब्रोक कर दिया. फर्दर उनके पोर्सिलेन मतलब चीनी मिट्टी के एक्सपेंसिव बोन, चाइना के जो
कह सकते हैं अपन यूटेंसिल्स आते हैं ना, उसको ब्रेक कर दिया, प्लस उनका जो फिनिश माल तैयार था उसमें से कपड़े निकाल निकाल के उनको स्मॉल पीसेस में काट दिए गए, उन पर अटैक किया और फाइनली कॉन्ट्रैक्टर्स को अपनी फैमिलीज के साथ वहां से भागना पड़ा और भाग के वो पास वाले विलेज में जब रिफ्यूजी बनने गए तो पास वाले विलेजर्स ने भी उनको शरण देने से मना कर दिया। अब उनके पास कोई चॉइस नहीं, कॉन्ट्रैक्टर को वापस अपने घरों में आना है, तो इस बार वो आर्मी के साथ आते हैं एंड फाइनली आर्मी शॉट द कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ द सिलिसिया। उनको 11 वीवर्स जो है मारे जाते हैं, वीवर्स पे कॉन्ट्रैक्टर्स की आर्मी शॉट करती है। और इस तरीके का इंसिडेंट सिलिसिया का भी दे रखा है। दोनों ही एंगल से दोनों इंपॉर्टेंट है बेटा। पॉपुलर देखो, अभी एक और रिवॉल्ट फर्दर अपन पढ़ने वाले हैं, तो रिवॉल्ट में कंफ्यूज मत होना कि कौन सा रिवॉल्ट। एग्जाम में आ जाता है रिवॉल्ट लिखो 1830 से 1848 के बीच में क्या हुआ, तो डोंट गेट कंफ्यूज। अगर रिवॉल्ट पॉपुलर रिवॉल्ट पूछा जाता है तो अपन फ्रांस का लिखेंगे और सिलिसिया का, और पर्टिकुलरली एग्जाम में पूछा ही जाता है कि व्हाट वाज द पॉपुलर रिवॉल्ट ऑफ फ्रांस। तो 1830 से 1848 के बीच में जो पॉपुलेशन इंक्रीज से लेकर ये जो पूरा रिपब्लिक गवर्नमेंट फॉर्म हुई, तो ये पूरा रिवॉल्ट है फ्रांस का, ठीक है। दिस वाज कॉल्ड एज पॉपुलर रिवॉल्ट ऑफ फ्रांस। और अगर स्पेशली सिलिसिया का पूछा जाए कि व्हाट हैपेंड टू द कॉन्ट्रैक्टर्स या व्हाट एक्सट्रीम सिचुएशन वाज फेस्ड इन सिलिसिया और व्हाट वाज द हार्डशिप पीरियड ऑफ सिलिसिया, तो आप ये वाला एग्जांपल लिखेंगे। तो ये सिलिसिया वाला और फ्रांस का पॉपुलर रिवॉल्ट, ये दोनों नोटबुक में आप लोग करना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब फर्दर अपन नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, ठीक है। वो था पॉपुलर रिवॉल्ट ऑफ फ्रांस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, वो भी रिवॉल्ट है फ्रांस का, वो भी रिवॉल्ट है। ये जो रिवॉल्ट किया ना, ये बेटा लोअर स्टार्टा, अपन ने पढ़ा फ्रांस वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स, तो थर्ड स्टेट में भी एजुकेटेड रिच पीपल्स थे और पुअर पीपल्स थे। तो ये जो रिवॉल्ट हुआ पॉपुलर रिवॉल्ट, दिस वाज डन बाय द पुअर पीपल्स ऑफ फ्रांस। जो एक्सट्रीम पुअर पीपल्स है ना फ्रांस के, उन्होंने ये रिवॉल्ट किया, ठीक है, जिनके पास जो है फूड शॉर्टेज की वजह से इस कंडीशन खराब हो रही है। जैकोबिन्स क्लब पढ़ा था ना अपन ने, तो उस तरह के पुअर पीपल्स ने रिवॉल्ट किया। अब अपन जो पढ़ेंगे द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, इसमें जो है थर्ड स्टेट के जो एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल्स है, डॉक्टर्स, लॉयर्स, उन्होंने फ्रांस में इसी दौरान इस सिचुएशन का फायदा उठा के, उनको लगा ऑलरेडी लोग रिवॉल्ट तो कर ही रहे हैं किंग के खिलाफ, तो इस सिचुएशन का क्यों नहीं फायदा उठाया जाए और हमको इस रिवॉल्यूशन को और तेज करके, ये तो कर रहे हैं रिवॉल्यूशन अपनी जो है बेसिक थिंग्स के लिए, बेसिक नीड्स के लिए पुअर पीपल, और लिबरल्स जो अब रिवॉल्ट करेंगे वो फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन लाने के लिए, पार्लियामेंट फॉर्म करने के लिए, प्रॉपर गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए सिचुएशन का फायदा उठाएंगे। तो जब पॉपुलर रिवॉल्ट ऑफ फ्रांस बाय पुअर पीपल पूछा जाए तो ये रिवॉल्ट लिखेंगे, ये सिलिसिया का करेंगे। और अब जो अपन पढ़ रहे हैं दैट वाज रिवॉल्ट बाय द लिबरल्स, दैट इज मिडिल क्लास और एजुकेटेड सेक्शन ऑफ द थर्ड स्टेट। तो उन्होंने क्या रिवॉल्ट किया इन 1848, लेट अस सी। So बेटा the revolution of liberals, ठीक है। What I have told you that the popular revolt was started by the poor people and this revolt was started by the middle class, educated, professional people, parallel to the revolt of poor people in 1848. In 1848, the France king that Louis Philippe again abdicated the throne, lived his power, and complete republic came in France. So there are some areas of Europe like Germany, Italy, Poland, Austro-Hungarian Empire where still monarchs were ruling. There was no proper, कह सकते हैं, independent was not there. तो स्पेशली यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है बेटा ऑफ जर्मनी, ठीक है। Why these peoples were revolting? Poor peoples were revolting because of their condition, and these liberal peoples were revolting for framing of parliament, constitution, for proper form of government, for freedom of press. Earlier जो ये न्यू कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आई थी, अपन ने डिस्कस किया था आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन, तो वो क्या थी, ऑटोक्रेटिक थी। उन्होंने सेंसरशिप लगा दिया था, लोगों को फ्रीडम ऑफ प्रेस छीन लिया था। तो अगेन व्हेन दिस पीपल्स केम टू रूल, they want freedom of press, they want to express their feeling, they want to speech freely to against the king. So especially one example is given here of Germany. What happened in Germany? In Germany, the political association, जो political club, जो revolutionary club जो rule कर रहे थे ना बेटा, जो run कर रहे थे, तो उनमें कौन थे politician? जो middle class peoples की जो political associations थी, they decided in 18 May 1848 कि हम जो है अपनी खुद की नेशनल असेंबली
बनाएंगे। कहाँ पे? जर्मनी की बात कर रहे हैं कि जर्मनी के पॉलिटिकल क्लब्स जिनके की मेंबर्स थे मिडिल क्लास पीपल, दे डिसाइडेड कि वी विल फॉर्म आवर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशंस, क्लब्स, वी विल फॉर्म आवर नेशनल असेंबली, हम अपनी नेशनल असेंबली बनाएंगे और अब जो है अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे और किंग की पावर को लिमिट करेंगे। मीन्स हम जर्मन में भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं वो लोग, सब 831 इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव असेंबली बनाते हैं वो लोग। असेंबली बनाने के बाद उन सारी असेंबली में से 831 मेंबर्स जो हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो नेशनल असेंबली फॉर्म कर रहे हैं वो इकट्ठे होते हैं। जर्मन के फ्रैंकफर्ट स्टेट है, फ्रैंकफर्ट स्टेट में पार्लियामेंट को बना के और सेंट पॉल्स चर्च में मीटिंग के लिए इकट्ठे होते हैं और वहां पे वो इनवाइट करते हैं जर्मन के किंग को। किंग कौन है? फ्रेडरिक विलियम। इनवाइट करके उसको वो प्रपोजल जो है उनके आगे पेश करते हैं जिसमें कि किंग को की पावर को लिमिट कर दिया गया। मीन्स वो नया कॉन्स्टिट्यूशन किंग को थमाते हैं और किंग इस प्रपोजल को मानने से जर्मन में मना कर देता है और अपने ट्रूप्स को बुला के जर्मन असेंबली को, जो नेशनल असेंबली फॉर्म की है मिडिल क्लास पीपल ने, उसको एंड कर देता है और जो है पावर जो नेशनल असेंबली की वापस स्नैच कर लेता है। एंड वंस अगेन मोनार्क रूल केम इन जर्मनी। ठीक है, अब बेटा अपन स्पेशली इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जर्मन यूनिफिकेशन, इटालियन यूनिफिकेशन और ब्रिटेन यूनिफिकेशन, ये 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इस चैप्टर के। तो जो जर्मन यूनिफिकेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस ना बेटा, तो जर्मन यूनिफिकेशन ये दिस इज नॉट अ जर्मन यूनिफिकेशन, दिस इज द प्री स्टेज ऑफ जर्मन इंडिपेंडेंस, दिस इज द प्री स्टेज ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। तो डोंट गेट कंफ्यूज, हम नेक्स्ट क्लास में जब जर्मन यूनिफिकेशन पढ़ेंगे ना बेटा तब आप कंफ्यूज मत होना। दिस इज द प्री स्टेज या फर्स्ट स्टेज। जर्मन में पहली बार जो मोनार्क के खिलाफ आवाज उठाई गई जिसको कि वापस मोनार्क ने दबा दिया, क्योंकि इन लोगों को जर्मन में जो मिडिल क्लास लोग जो ये ले रहे थे स्टेप, उनको वहां के पुअर पीपल्स ने भी सपोर्ट नहीं किया। किंग ऑल्सो रिफ्यूज द प्रपोजल, एट द सेम टाइम पुअर पीपल्स वर नॉट रेडी टू सपोर्ट द मिडिल क्लास पीपल, क्योंकि उनको पता था कि कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी बदलाव आएगा उसमें पुअर पीपल की लाइफ में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो दे ऑल्सो नॉट सपोर्टेड एंड फाइनली ये जो रिवॉल्ट जो एक फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट टाइम जर्मन में वॉइस रेज हुई, उसे दबा दिया गया। तो दिस इज द प्री यूनिफिकेशन पीरियड, फर्स्ट स्टेप फॉर द जर्मन इंडिपेंडेंस। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज विद इट। वन मोर थिंग इज गिवन इन दिस फाइनल पोर्शन, दैट इज द रोल ऑफ वुमेन। तो इस जो पूरा ये जर्मन यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस हुआ ना, इसमें वुमेन्स ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। और बट जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था ना, जब ये ड्राफ्टिंग हो रही थी कॉन्स्टिट्यूशन में, राजा को बुलाया गया, उसमें वुमेन्स को जो है प्रॉपर राइट्स की तो बात की नहीं गई। यूनिवर्सल सफ्रेज मतलब लंबे समय तक हम पढ़ेंगे, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे यूरोप का कोई भी पार्ट हो, वुमेन के राइट्स की कोई बात नहीं की गई। वुमेन्स ने क्यों पार्टिसिपेट किया बेटा? यहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस होप में कि उनकी पोजीशन को भी रेज होगी। मतलब वुमेन्स ने अपने खुद की पॉलिटिकल क्लब्स फ्रेम की, पॉलिटिकल मीटिंग्स कंडक्ट की जर्मन में जो है इंडिपेंडेंस लाने के लिए, और इस उम्मीद से की कि कहीं ना कहीं जो है उनको भी राइट्स मिलेंगे। बट राइट्स दूर की बात है, जब ये जर्मन में मीटिंग हो रही थी तो वुमेन्स को जस्ट एक मेयर जो अपन कह सकते हैं खड़े रहने की जगह दी और उनको सिर्फ चुपचाप देखने का अधिकार मिला, उनकी राइट्स की बात भी नहीं की गई यहाँ पे। तो जर्मन में वुमेन्स ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया गया पर उनके राइट की कोई बात नहीं की गई जर्मन में। ठीक है, लंबे समय तक। फर्दर अपन लास्ट पैराग्राफ पेज नंबर 18 पर आज का पढ़ेंगे, जिसमें अपन पढ़ेंगे कि कंजर्वेटिव्स ने, राजा ने यहाँ पे वॉइस तो दबा दी जर्मन पीपल की। ठीक है, जो नेशनल असेंबली थी उसको खत्म कर दिया, बट कहीं ना कहीं हम ये पढ़ेंगे कि ओवरऑल यूरोप में जो मोनार्क रूल कर रहे थे ना, उनके अंदर धीरे धीरे ये फीलिंग डेवलप होना शुरू हो गई थी कि जो ये रिवॉल्यूशन एक बार स्टार्ट हो चुके हैं, जो पुअर पीपल्स ने, मिडिल क्लास पीपल्स ने, रिवॉल्यूशनरीज ने वॉइस रेज करना शुरू कर दी है, उसको हम दबा तो रहे हैं पर हम लंबे समय तक दबा के नहीं रख सकते। अगर हम एक बार दबाएंगे तो वापस वॉइस रेज करने कोई ना कोई कहीं ना कहीं से खड़ा हो ही जाएगा। तो ये रियलाइजेशन मोनार्क्स को होना शुरू
हो गया था एंड नाउ दे डिसाइडेड टू शेयर, मतलब किंग्स ने खुद ने ही ये डिसाइड किया कि हम अपनी पावर को लिमिट करने को तैयार हैं, शेयर करने को तैयार हैं। उनको ये रियलाइज हो गया था कि हम लंबे समय तक लोगों को दबाकर नहीं रख सकते। एंड फाइनली हम पढ़ेंगे कि सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप में जो है किंग्स ने, और एक रशियन के हैब्सबर्ग एम्पायर का एग्जांपल दे रखा है कि यहाँ पे जो है किंग ने जो है अपनी पावर को लिमिट किया, जनरल पब्लिक का साथ शेयर किया, जो पुअर पीपल्स के फ्यूडल ड्यूज थे उनको माफ कर दिया गया। तो दिस वाज वन ऑफ द एग्जांपल गिवन इन योर बुक। तो अभी यहीं तक पढ़ेंगे। दिस वाज द प्री स्टेज ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन, दिस इज नॉट द जर्मन यूनिफिकेशन, वो अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज जितना ही कवर कर रहे हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस तो मैंने शायद आपको बता दिए हैं और फर्दर जो होमवर्क है मैं इवनिंग में आपको दूंगी। थैंक यू बेटा।